Good morning students, this video is for class 7th and today we will start chapter 6 of history, that is towns, traders and craftsmen. After half yearly, this is our first chapter, chapter 6. So let's continue with the meaning of the chapter, that what is the meaning of town, then traders and craftsmen. What is the meaning of town? Town is the place with many streets and buildings, and a town is larger than a village but smaller than a city, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कस्बा. नेक्स्ट वन इज ट्रेडर्स. ट्रेडर्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यापारी. सो अ पर्सन, traders is a person who buying or selling goods, especially goods means not services, in market or a company shares are known as traders. तो व्यापारी क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, to buying and selling things, particularly goods, खास करके किसी सामान को बेचना या खरीदना. Now the next one is craftsmen. Craftsmen are the persons who made things especially with their hands, are known as craftsmen, जिनको हम कारीगर भी कह सकते हैं. Using their special skills, अपनी skills को use करके हाथों से वो जो भी चीज़ें बनाते हैं, whether in their workshop or at their home, are known as craftsmen. Now so India was prosperous, developed and stable during the medieval period. In this chapter we learn everything about the medieval period. हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, whether about the sultanate, about the empires, kingdoms, whatever we have learned or discussed is about medieval period. So India was prosperous, बहुत ही समृद्ध था, डेवलप कर रहा था, and stable, was also stable means स्थिर थी उसकी हालत during the medieval period, and this development was due to Cholas, दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल रूलर्स. और ये जो विकास था, ये जो डेवलपमेंट हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, चोला रूलर्स की वजह से हुआ था, दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल रूलर्स. नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड? सो ट्रेड एंड कॉमर्स flourished under the Mughals because the rulers supported trading activities. तो व्यापार बहुत फल फूल रहा था क्योंकि जो मुगल रूलर्स थे वो ट्रेडिंग एक्टिविटी को बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे, एंड रिमूव्ड ऑल द ऑब्स्टेकल्स, और उनके बीच में जो भी हर्डल्स थे, ऑब्स्टेकल्स थे, बाधाएं थी, उनको भी दूर कर दिया था टू मूव टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, सो दैट गुड्स कैन बी ट्रेडेड इजीली. नाउ ट्रेडर्स कैन इजीली purchase and sell things in the market, and large villages now converted into towns due to this development. And now the large villages, जो बड़े बड़े गांव थे, अब वो टाउन्स में डेवलप होने लगे थे, विकसित होने लगे थे. उनका जो विकास है वो टाउन्स में होने लगा था, कस्बे बनने लगे थे. Some towns were also founded by the Delhi Sultans for trade, and some towns were also founded by Delhi Sultans. उस समय कुछ टाउन्स ऐसे थे जिनका फाउंडेशन, जिसकी नींव किसने रखी, दिल्ली सुल्तान्स ने. किसके लिए? स्पेशली फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स पर्पस. And some towns in different parts of the country perform multiple functions, and there were some towns in the medieval period, during the medieval period, which perform multiple functions, जहाँ पे कई सारे functions होते थे. Many foreign travelers who visited India during the medieval period left behind several accounts descriptions. For example, Ibn Battuta from Morocco and Marco Polo from Italy, etc. Besides this, Mughal official documents on the land grants and land revenue also give us a lot of information during the medieval period. Now our first topic of this chapter is
Types of towns. We have discussed what is town. Town is a place with many streets and buildings, and a town is larger than a village but smaller than a city. Now in this topic we'll come to know about types of towns. There are different types of towns which we'll learn in this topic. So towns of medieval period were classified on the basis of different functions performed by them. तो जो medieval period के towns थे, कस्बे थे, उनको किसके आधार पे विभाजित किया गया था, डिवाइड किया गया था? उनके फंक्शंस के बेसिस पे, उनके फंक्शन के आधार पे, वहाँ पे जो भी काम किए जाते थे, जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते थे, उनके आधार पे. सो दे वर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट वन, टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, कैपिटल टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ट्रेड एंड कॉमर्स टाउन, एंड द लास्ट वन इज क्राफ्ट टाउन. So we'll learn about our first town, that is temple towns and pilgrimage centers. Temple we all know. Temple क्या होते हैं? मंदिर. Pilgrimage धार्मिक स्थल, धार्मिक यात्रा, है ना? So these are the towns developed due to religious significance. Temple towns developed due to religious significance, religious important. तो टेम्पल टाउन्स का डेवलपमेंट क्यों हुआ? रिलीजियस इम्पोर्टेंस की वजह से, धार्मिक आस्थाओं के महत्व की वजह से. थंजौर, कांचीपुरम, मदुराई, तिरुपति, सोमनाथ एंड तिरुपति आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अ टाउन दैट डेवलप्ड एज अ टेम्पल टाउन. तो थंजौर, कांचीपुरम, मदुराई, तिरुपति एंड सोमनाथ ये एग्जाम्पल हैं किसके? टेम्पल टाउन्स के. These towns represent a very important pattern of urbanization. यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि हमको एक और पैटर्न देखने को मिला अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण का, टेम्पल टाउन्स में. Now what is urbanization? शहरीकरण. So urbanization is an increase in the number of people living in towns and cities. So increase in number of people in towns and cities are known as or called as urbanization. Temples were often central to the economy. Temples, मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण थे. किसके लिए? इकोनॉमी के लिए भी. ना सिर्फ रिलीजियस मैटर्स की इम्पोर्टेंस थी बल्कि ये इकोनॉमिक तौर पे, आर्थिक तौर पे भी बड़े ही महत्वपूर्ण थे. एंड ऑल्सो फॉर सोसाइटी. Rulers built temples to demonstrate their devotion to various deities. Rulers built temples. जो रूलर थे, शासक थे, उन्होंने टेम्पल क्यों बनाए? So that they can demonstrate, describe their devotion to various deities. Deities means gods and goddesses. जो भी भगवान को वो मानते थे, उनके लिए अपना डिवोशन, अपना समर्पण दिखाने के लिए वो उस समय मंदिर बनवाते थे. They also gifted temples with grants of land. इसके साथ साथ वो मंदिरों को गिफ्ट भी देते थे, बहुत सारा गिफ्ट देते थे. ग्रांट ऑफ लैंड किसके तौर पे? बहुत सारा लैंड देते थे. मनी टू कैरी आउट एलैबोरेट रिचुअल्स, ताकि वहाँ पे जो भी रिचुअल्स हैं, अनुष्ठान हैं, उन्हें पूरा किया जा सके, पूजा पाठ की जा सके. फीड पिलग्रिम्स, जो भी वहाँ पे यात्री आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, उन्हें फीड किया जा सके, खिलाया जा सके. एंड प्रीस्ट और जो पुजारी होते हैं उन्हें भी पैसा मिल सके. एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, और त्यौहार, मंदिरों में त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए ये ग्रांट्स, ये गिफ्ट्स दिए जाते थे. पिलग्रिम्स हु गैदर्ड टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशन. इसके साथ साथ जो धार्मिक यात्रा पे लोग आते थे, पिलग्रिम्स आते थे, यात्री आते थे, वो भी डोनेशन देते थे, मंदिरों में दान दक्षिणा देते थे. टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज्ड देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग. फिर जो टेम्पल अथॉरिटी होती थी
उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो इस वेल्थ को, इस दौलत को किस लिए यूज़ करते थे, इस फाइनेंस को व्यापार के लिए या बैंकिंग के लिए, मीन सेव करने के लिए, ताकि फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकें, या फिर इसको ट्रेड पर्पस के लिए यूज़ करते थे। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स, वर्कर्स, आर्टिशंस, ट्रेडर्स एट्सेट्रा सेटल्ड नियर द टेम्पल। धीरे धीरे ऐसे ही लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, बड़ी मात्रा में बहुत सारे पुजारी, कई सारे वर्कर्स, आर्टिशंस, ट्रेडर्स, कई सारे व्यापारी और कारीगर मंदिर के आसपास सेटल्ड हो गए, बस गए। किस लिए? टू केटर टू इट्स नीड एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स, ताकि वो मंदिर की ज़रूरतें, साथ में वहाँ पे जो पिलग्रिम्स आते हैं, यात्री आते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। These results in the existence of temple towns, और इसी का रिज़ल्ट क्या है? डेवलपमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्पल टाउन्स। आज भी हम देख सकते हैं मंदिर के आसपास बहुत सारी दुकानें होती हैं और वहाँ पे बहुत सारा ट्रेड चल रहा होता है। वहाँ पे प्रसाद की दुकानें होती हैं, गार्लैंड्स की दुकानें होती हैं, मीन्स माला, फूल और अलग अलग तरह का प्रसाद या फिर जो भी भगवान को चढ़ाया जाने वाला चीज़ होता है, उन सब की दुकानें होती हैं। तो मंदिर सिर्फ ना एक पूजा करने की जगह है या धार्मिक आस्था का महत्व है, बल्कि वहाँ पे इकोनॉमिकल पर्पस भी है। मीन्स वो सोसाइटी में आर्थिक तौर से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाउ our next one topic is temple towns near Coimbatore, Tamil Nadu. A journey to a sacred place is called a pilgrimage. पिलग्रिमेज क्या होता है? धार्मिक यात्रा, मीन्स किसी भी पवित्र स्थान की जब हम उसके दर्शन करने की जो यात्रा करते हैं उसको पिलग्रिमेज कहते हैं। अ पर्सन हु मेक्स सच टाइप ऑफ जर्नी इज कॉल्ड पिलग्रिम, और एक व्यक्ति जो इस तरह की यात्रा को करता है उसको पिलग्रिम कहा जाता है। सम ऑफ द पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स। ऐसे ही बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स धीरे धीरे किसमें डेवलप्ड हो गए हैं? टाउनशिप्स में। दीज पिलग्रिमेज सेंटर्स डेवलप्ड एज अर्बन सेटलमेंट्स बिकॉज ऑफ रेगुलर सपोर्ट बाय रूलर्स। और ऐसे ही धार्मिक स्थल अब किसमें विकसित हो चुके हैं? अर्बन सेटलमेंट्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगातार सपोर्ट रहा रूलर्स का, डिवोटीज़ का एंड पिलग्रिम्स का। फॉर एग्जाम्पल बनारस, वाराणसी, वृंदावन इन उत्तर प्रदेश एंड तिरुवन्नमलई in Tamil Nadu. Sometimes a pilgrim town also developed a certain culture due to their association with a particular faith. तो ये सारी जगहें, बनारस, वृंदावन, ये सब हम जानते हैं। इनका विकास क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे लगातार रूलर्स का, पिलग्रिम्स का सपोर्ट मिला, ग्रांट्स मिले, डोनेशंस मिले, जिससे इसका विकास हो चुका। एंड नाउ लॉट ऑफ पीपल सेटल्ड हियर, ना सिर्फ पूजा करने के पर्पज़ से, ट्रेड के पर्पज़ से या फिर दूसरे अपने किसी जॉब के पर्पज़ से वहाँ पे सेटल्ड हो गए। एंड समटाइम्स अ पिलग्रिम टाउन ऑल्सो डेवलप्ड एज सर्टेन कल्चर, किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के साथ भी वो विकसित हो जाता है, डेवलप होता है ड्यू टू देयर एसोसिएशन विद पर्टिकुलर फेथ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।